today's topic is electrovalent or ionic bond. In this topic, we will discuss about what is electrovalent or ionic bond, how these bonds are formed, what are the various factors which control the formation of these electrovalent or ionic bonds, and finally some characteristics of the compounds which are electrovalent or ionic in nature. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये अच्छी तरह से पता है कि कोई भी एटम बॉन्ड बनाता क्यों है, सो एज टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट. अगर ऑक्टेट से थोड़े से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है तो ये एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, अगर ऑक्टेट से थोड़े से कम है तो इलेक्ट्रॉन्स गेन करके एटम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बना सकता है. फॉर एग्जांपल, in case of sodium the electronic configuration is 281, and after losing one electron it attains stable noble gas electronic configuration of 2,8. noble gas neon like configuration है ये. So it is losing one electron, one valence shell electrons, which is basically of 3s subshell. ठीक है, so electronic configuration is 1s2 2s2 2p6 and 3s1. So after losing one electron it is attaining a stable noble gas electronic configuration. Now consider the example of chlorine. Its electronic configuration is 287. It is also unstable and it can gain one electron and will form. So in case of sodium it was having only one valence shell electron. In case of sodium the number of valence shell electrons is 7. So these are the 7 valence shell electrons, but after gaining that one electron, extra electron, it will be converted into Cl negative and it would have stable electronic configuration argon like. Now both these atoms, sodium as well as chlorine, they are converted into ions which have stable electronic configuration. Now these oppositely charged ions means Na positive and Cl negative ion, they will attract each other, and the forces of attraction between these ions are basically electrovalent or ionic bond. So Na positive and Cl negative will form a compound sodium chloride. So this is sodium chloride and this is the Lewis dot structure for sodium chloride, in which chloride has 288 configuration and sodium has 28. So this is Lewis dot structure for NaCl. So how electrovalent bond is formed? So it is formed by complete transfer of electrons. Electron is transferred from sodium to chlorine. So what is the definition? When a bond is formed by complete transfer of electrons from one atom to another, so as to complete their outermost valence shells. That is ऑक्टेट और ड्यूप्लेट. इसके बारे में पहले बात कर चुके हैं. एंड हेंस टू एक्वायर नियरेस्ट noble gas atom like configuration. सो नियरेस्ट की बात की जाती है. अब सोडियम के नियरेस्ट आर्गन नहीं है, सोडियम के नियरेस्ट नियोन है, तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके नियोन लाइक कन्फिग्रेशन बना लिया. क्लोरीन के नियरेस्ट नियोन नहीं है, आर्गन है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और आर्गन लाइक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगा. तो नियरेस्ट की बात करनी है, ठीक है. So this was the definition of electrovalent or ionic bond. One more example. So just wait. So in case of magnesium, we have two valence shell electrons, 282, and oxygen has 6 valence shell electrons. So oxygen can transfer its 2 electrons to oxygen. Oxygen का है 2 6.
आफ्टर दिस व्हाट विल बी फॉर्म्ड, मैग्नीशियम विल अटेन। नाउ मैग्नीशियम के नियरेस्ट कौन सी है, नियोन, तो मैग्नीशियम नियोन जैसा कन्फिग्रेशन अटेन कर लेगी आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हेंस विल बी कन्वर्टेड इनटू Mg2 पॉजिटिव आयंस। ऑक्सीजन का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। ऑक्साइड के पास पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे, अब कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। सो इट इज 2 नेगेटिव। दिस इज आल्सो नाउ स्टेबल कन्फिग्रेशन। तो ऑक्सीजन के भी नियरेस्ट क्या है, नियोन ही है, तो दोनों नियोन लाइक कन्फिग्रेशन अटेन कर लेंगे। सो अगेन दिस इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ MgO। नाउ व्हाट आर द वेरियस फैक्टर्स विच कंट्रोल द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। फैक्टर्स affecting the formation of ionic bond, formation of ionic bond। और यहाँ पे जो फैक्टर्स स्टडी किए जाएंगे वो ऑलरेडी हम लास्ट जो चैप्टर था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, वहाँ पे वो सारे के सारे टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। आप यहाँ पे क्लियरली देखो, now see here what is happening। Na has 1 valence shell electrons and it want to lose this 1 electron, ठीक है। now for removing the electron we need energy and that energy was called ionization enthalpy। this was the last chapter's topic, ionization enthalpy। so सोडियम से हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है ताकि हमारे पास कैटायन बन जाए, ठीक है। सो फर्स्ट फैक्टर ही यही है, आयनाइजेशन एंथैल्पी। सो यहाँ पे 2 एटम्स इन्वॉल्व है, एक वो जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक वो जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो लूज करना है, इलेक्ट्रॉन को लूज करवाने के लिए वी नीड एनर्जी एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। नाउ कब बड़े इजीली कैटायन बन जाएगा, जितना इजीली कैटायन और एनायन बनेंगे उतने ही इजीली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर कैटायंस एंड एनायंस आर अवेलेबल obviously we can have the electrovalent or ionic bond. Now in case of sodium we have to remove the electron and we need some energy, that energy is called ionization enthalpy and if the amount of this energy is low, अगर सोडियम से इलेक्ट्रॉन या किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम एनर्जी लगेगी तो उसके कैटायन बनाने के चांसेस ज़्यादा हैं। जितने कैटायन बनाने के चांसेस ज़्यादा होंगे ऑब्वियसली उसका आयनिक बॉन्ड बनाने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो पहली ही कंडीशन क्या है कि जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है जिसने इलेक्ट्रॉन लूज करना है दैट शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी, फर्स्ट फैक्टर इज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो किसने लूज करना है इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है बाद में। सो द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम मीन्स कौन सा, विच फॉर्म्स कैटायन शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, शुड हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है। बिकॉज lower the ionization enthalpy, easier is the removal of electron, easier is the removal of electron। ओके, तो एक फैक्टर तो हमने पढ़ लिया कि आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होनी चाहिए। अब बात करते हैं क्लोरीन की। क्लोरीन ने बनाना है एनायन, और कैसे बनाएगा, बाई गेनिंग इलेक्ट्रॉन। और जब इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तब हम एंथैल्पी जो पढ़ते हैं वो होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। और जितना इजीली इलेक्ट्रॉन ऐड होता है उतनी ही इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मोर नेगेटिव आती है। दिस इज द लास्ट चैप्टर्स टॉपिक अगेन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो आपको ये भी पता है अगर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है इट मींस इलेक्ट्रॉन ऐड करना डिफिकल्ट है। जैसे हमने पढ़ा था नोबल गैसेज में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वाज पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव थी, क्योंकि नोबल गैसेज का कन्फिग्रेशन तो ऑलरेडी फुली फिल्ड था, उसमें एक एडिशनल इलेक्ट्रॉन ऐड करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट, तो वहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी। ओके, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव थी और वहाँ एनायन नहीं बन सकता था। एनायन बनाने के लिए व्हाट वी नीड कि
कि इलेक्ट्रॉन बड़ा इजीली जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो गेन कर ले। जितना इजीली इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी उसकी उतनी ही ज़्यादा नेगेटिव होगी। तो जो सेकंड फैक्टर है, दैट सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सेकंड फैक्टर इज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। सो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी मोर नेगेटिव सो दैट के एनाइन इजिली बन जाए, ठीक है। और ये कौन बनाएगा, जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब विच, वो एटम विच फॉर्म्स एनाइन should have more negative। मैं बार बार कह रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के बारे में हम मोर और लेस की बात नहीं करते। इट इज़ मोर नेगेटिव और लेस नेगेटिव। मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ओके, सो सॉरी, दो फैक्टर हो गए ये, मोर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होनी चाहिए। नाउ द थर्ड पॉइंट इज, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज न्यूअर वन, इज लैटिस एंथैल्पी। लैटिस एंथैल्पी ये आपके लिए नई चीज़ है, और इसको समझाने के लिए I will again write the example of that sodium and ओके। सो हमने ऊपर दो कैटायन बना लिए, दो आयन बना लिए, एक कैटायन और एक एनायन, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ओके, नाउ दीज आर अपोजिटली चार्ज्ड आयंस। मैं फिर से यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ, एक है, यहाँ लिखता हूँ मैं, Na पॉजिटिव और एक है Cl नेगेटिव। Cl के पास भी अपना ऑक्टेट पूरा है और सोडियम के पास भी अपना ऑक्टेट पूरा है, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, प्लीज़ बी केयरफुल। यहाँ से टॉपिक बाद में एस ब्लॉक में भी हम स्टडी करेंगे। सो ये क्लोराइड लिख दिया और 2,8 वाला सोडियम लिख दिया। नाउ एक पॉजिटिव चार्ज का है, एक नेगेटिव चार्ज का है। सो दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। जब अट्रैक्शंस होंगी, एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी इज रिलीज। ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी। सो जब कैटायन और एनायन कंबाइन करेंगे, देन द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड is called lattice enthalpy, is called lattice enthalpy। और ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसके आगे हम और चीज़ें स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस lattice enthalpy? It is defined as the amount of energy released when requisite number, अभी बताऊंगा आपको व्हाट इज requisite number, when requisite number of gaseous cation and anion, cation means positively charged, anion means negatively charged ion, combine with each other to form 1 mole of the ionic compound, ओके। कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है, तो यहाँ पे जब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन कर जाएंगे, वी विल गेट दिस कंपाउंड NaCl एंड दिस इज आयनिक कंपाउंड, ओके। यहाँ चार्ज है नेगेटिव और 1 मोल बनाना है, 1 मोल, तो NaCl बन गया 1 मोल, एज इट इज़ 1 मोल। सो 1 मोल बनाने के लिए कितनी एनर्जी यहाँ पर रिलीज होगी, दैट रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, या इवन एनर्जी भी आप इसको कह सकते हो, Le करके इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो ये है रिलीज।
अब एक टर्म आई थी ऊपर एंड दैट वाज रिक्विजिट नंबर. नो व्हाट इज रिक्विजिट नंबर? मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और मेंशन कर देता हूँ. कंसीडर द केस ऑफ कैल्शियम फ्लोराइड. सो Ca2 पॉजिटिव 288, it has lost 2 electrons to 2 fluoride ions. एक फ्लोराइड को एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, दूसरे फ्लोराइड को भी दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो दोनों ही F नेगेटिव बन गए. ऐसे 2 फ्लोराइड बन गए. तो रिक्विजिट नंबर का यही मतलब है. एक कैल्शियम के लिए कितने फ्लोराइड चाहिए? वी नीड 2. तो रिक्विजिट नंबर. एक सोडियम के लिए कितने क्लोराइड चाहिए थे? एक कैल्शियम के लिए कितने फ्लोराइड? 2. दिस इज रिक्विजिट नंबर. ओके. अगर मुझे इसी तरह से कुछ और लिखना हो, जस्ट मैंने मान लो AlCl3 लिखना हो, AlCl3, तो AlCl3 में एक कैटायन एल्यूमिनियम के लिए कितने क्लोराइड चाहिए? वी नीड 3 क्लोराइड. सो दिस इज रिक्विजिट नंबर बिकॉज आफ्टर कंबाइनिंग these 1 aluminium after combining with 3 chloride ions it will form AlCl3 1 mole. So this is requisite number. तो यहाँ पे what we will get CaF2 कैल्शियम फ्लोराइड जो है वो हमारे पास बन जाएगा. सो रिक्विजिट नंबर का आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अब इसी टॉपिक को आगे लैटिस एंथैल्पी को. सो क्या होना चाहिए? जितनी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी लैटिस एंथैल्पी रिलीज होगी. ठीक है, सेम वैसे ही, क्योंकि रिलीज का हमेशा मतलब यार लेके चलना है, एनर्जी जब भी रिलीज होगी सिस्टम विल बी स्टेबलाइज्ड. सो यहाँ पे क्या बनता है? मोर द लैटिस एंथैल्पी more is the stability of ionic compound. जितनी एनर्जी ज़्यादा रिलीज हो जाएगी वो सिस्टम उतना ही स्टेबल हो जाता है. बड़ी कॉमन सी एग्जांपल है. आपको खाने को कुछ ना दिया जाए और आपको काम पे लगा दिया जाए, तो आप काम करते जाओगे, आपकी बॉडी की एनर्जी रिलीज होती जाएगी और आप थकते जाओगे और अल्टीमेटली यू विल बी स्टेबल. सो जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितनी एनर्जी आप में से निकलती जाएगी, उतना ही आप थकते जाओगे, मीन्स आप स्टेबल होते जाओगे. तो यहाँ पे भी मोर द लैटिस एंथैल्पी मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड. और यहाँ पे क्या है? लैटिस एंथैल्पी रिलीज्ड वाली है. लेटर ऑन इन आवर सिलेबस हम आगे जो चैप्टर स्टडी करेंगे वहाँ लैटिस एंथैल्पी पॉजिटिव टर्म में भी आती है, जहाँ एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही होती है. ठीक है, तो उसके बारे में यहाँ पे रेफरेंस में अभी फिलहाल अवॉइड कर रहा हूँ. तो 3 फैक्टर्स पढ़े. पहला कौन सा था? आयनाइजेशन एंथैल्पी. बड़े इजीली कैटायन बन जाना चाहिए. बड़े इजीली तभी बनेगा जब आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है. दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी. बड़े इजीली एनायन बनना चाहिए, और बड़े इजीली एनायन बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होनी चाहिए? मोर नेगेटिव होनी चाहिए. तीसरा पॉइंट आया लैटिस एंथैल्पी है क्या? वो डेफिनेशन बता दिया आपको, एग्जांपल्स बता दिया आपको. लैटिस एंथैल्पी में क्या है? इट इज द रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी. ओके, और जितनी ज़्यादा रिलीज होगी उतनी ही कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी. सो लैटिस एंथैल्पी भी क्या होनी चाहिए? मोर रिलीज होनी चाहिए, मतलब मोर नेगेटिव होनी चाहिए. ये भी नेगेटिव है. सो इन अदर टर्म्स लैटिस एंथैल्पी शुड बी मोर नेगेटिव, क्योंकि रिलीज टर्म हम बार बार नेगेटिव के रेफरेंस में लेके चलते हैं, आपको समझा चुके हैं. शुड बी मोर नेगेटिव, जैसे एंथैल्पी का केस आया था. ओके, अभी लैटिस एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स कंट्रोल करेंगे? तो अब हम इसी का सब सेक्शन आगे स्टडी करने जा रहे हैं. वो है फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैटिस एंथैल्पी. फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैटिस एंथैल्पी. ओके, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले एक इक्वेशन यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ. मैंने आपको ऊपर ये बताया कि जितना स्ट्रांगली कैटायन एनायन को अट्रैक्ट करेगा उतनी ही लैटिस एंथैल्पी ज़्यादा होगी, मीन्स ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड. अब एक दूसरे को कैटायन और एनायन कब अट्रैक्ट ज़्यादा करेंगे? उनके साइज और उनके चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है. और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the charges over the square of the distance separating these charges. तो क्या क्या टर्म्स आई देखना इधर. Q1 and Q2 क्या है? these are the charges of cation and anions. cations और anions के चार्जेस हैं, कैटायन के चार्जेस हैं. ये आर क्या है?
R is distance separating पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन, उनके बीच का डिस्टेंस। तो पहला जो पॉइंट आता है यहाँ तो वही है, चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन। चार्ज ऑफ कैटायन एंड एनायन, बड़ा स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा तो अट्रैक्शन ज़्यादा होंगे। आपने कई बार जो बिजली के पोल्स होते हैं उनके ऊपर देखा होगा, जो तारें क्लोज हैं एक दूसरे के, हाई वोल्टेज की तारें उनमें और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, मतलब चार्ज है उनमें, उनमें स्पार्किंग सी होती रहती है। ऐसा घरों में तो नहीं होता क्योंकि घरों में वोल्टेज कम आ रही है, ठीक है, करंट कम है। इसका सीधा मतलब है जहाँ चार्जेस ज़्यादा होंगे वहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी। पॉजिटिव चार्ज जितना ज़्यादा होगा वह नेगेटिव को उतना स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मोर इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और आपको दिख भी रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस। ओके, जो दूसरा पॉइंट आता है वो है उनके बीच का डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो डिस्टेंस शुड बी स्मॉल। वो तारे बहुत दूर दूर हों तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, कोई स्पार्किंग, बट वो तारे जब एक दूसरे के पास आएंगे तो देन स्पार्किंग अकर्स, मीन्स डिस्टेंस जितना कम होगा। आप बिजली की तारें घर में पकड़ो, नॉर्मल पकड़ो, दूर हैं एक दूसरे से, वो एक दूसरे को कोई स्पार्किंग शो नहीं करेंगे, बट जैसे आप उनको पास लेके आओगे, इवन टच अगर कर दोगे तो स्पार्किंग हो जाएगी, ठीक है। सो डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, ठीक है। सो सेकंड फैक्टर इज डिस्टेंस। और डिस्टेंस आगे डिपेंड करता है, डिस्टेंस से बेटर है एटॉमिक साइज, एटॉमिक या आयनिक साइज। यहाँ आयनिक साइज ज़्यादा बेटर है क्योंकि हम कैटायन और एनायन के बारे में स्टडी कर रहे हैं। सो एटॉमिक साइज स्मॉलर द साइज ऑफ द कैटायन एंड एनायन, lesser is the distance between them, lesser is the distance between them, and hence stronger is the force of attraction, stronger is the force of attraction. So ये थे फैक्टर्स कंट्रोलिंग लैटिस एंथैल्पी, ठीक है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शुड बी हाई। फोर्स कब ज़्यादा होगी, जब चार्जेस ज़्यादा हैं। तो एक एग्जांपल की फॉर्म है, जैसे Na पॉजिटिव है, ठीक है, Cl नेगेटिव है, एक Mg2 पॉजिटिव है, अगेन Cl नेगेटिव है, तो Cl तो दोनों में कॉमन है, बट Na पॉजिटिव आपने पढ़ा है, इसका साइज ज़्यादा है, साइज कैटायन का सोडियम का ज़्यादा है, और Mg2 पॉजिटिव का साइज छोटा है, ऊपर से इस पे चार्ज भी ज़्यादा है। तो मैग्नीशियम और क्लोराइड के बीच की जो फोर्सेस हैं दे विल बी स्ट्रोंगर देन NaCl, क्यों, क्लोराइड तो कॉमन है, उसको तो हम कंपेयर कर नहीं सकते। Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, ओके, बट क्योंकि मैग्नीशियम में न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो यहाँ पे साइज स्मॉल होगा Mg2 पॉजिटिव आयन का, एक तो साइज छोटा हो गया, ऊपर से मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज ज़्यादा है, तो यहाँ पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है दे आर स्ट्रॉन्गर देन NaCl, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में। सो दीज आर दी फैक्टर्स जो लैटिस एंथैल्पी को आगे कंट्रोल करते हैं। सो इन केस यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन के कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो आपको ये तीनों फैक्टर लिखने हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड लैटिस एंथैल्पी। और लैटिस एंथैल्पी में आगे जो लैटिस एंथैल्पी को फैक्टर्स कंट्रोल कर रहे हैं इनके बारे में भी ज़रूर मेंशन करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक सॉलिड्स। तो पहली प्रॉपर्टी क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, दे आर सॉलिड्स, और वो भी क्रिस्टलाइन। क्रिस्टलाइन क्या है, दे हैव अ रेगुलर अरेंजमेंट। इन केस ऑफ NaCl सॉलिड द कांस्टेंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जैसे सोडियम आयंस है, सोडियम आयंस कहाँ प्रेजेंट होंगे, सोडियम आयंस आर प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एज
एट द सेंटर ऑफ ईच एच, ये Na पॉजिटिव आयंस है, और जो Cl नेगेटिव आयंस है, Cl नेगेटिव आयंस आर प्रेजेंट एट ईच फेस सेंटर, सो देयर आर 6 फेसेस, ये फ्रंट वाली फेस, ये पीछे वाली फेस, एंड एट ईच corner. So you can see here they are crystalline solids, because in crystalline solids there is a regular arrangement of cations and anions. So in case of ionic solids they have crystalline structure. Crystalline structure means they have a regular arrangement of constant particles, a regular arrangement of constant particles. ऊपर जो ये पार्टिकल्स आपको दिखाए हैं, ये जो आपको बताया, ये Cl नेगेटिव आयंस हैं, ठीक है। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, दे आर वाटर सॉल्युबल, दे आर वाटर सॉल्युबल, पता है आपको अच्छी तरह से। जो थर्ड प्रॉपर्टी है, दे आर बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी in solid state, in solid state, but very good conductors, very good conductors in aqueous solution form or in ionic form, or in ionic form, ठीक है। The fourth point is they show ionic reactions, they show ionic reactions. For example AgNO3 का सोल्यूशन आपने एक्वस लिया, उसमें आपने NaCl ऐड कर दिया एक्वस सोल्यूशन, व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट्स ऑफ AgCl और साथ में बन जाएगा NaNO3 एक्वस। सो AgCl के वी विल गेट वाइट प्रेसिपिटेट्स। और जो लास्ट प्रॉपर्टी है, दे हैव हाई melting point, they have high melting point. So these were the characteristic features. They are solids, and particularly they are crystalline solids in which the particles are regularly arranged. For example, I have shown you the structure of NaCl, in which Na positive ions are present at each H plus body center, and Cl negative ions are present at each corner and center of phase, center of phase. So this was all about for electrovalent bond. What are the conditions required for the formation of electrovalent bond, examples of some electrovalent compounds, and finally their properties. Okay, thank you.